Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya 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 Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Krishna Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Jaya Prabhupada 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 Jaya Jayam Vishnupada Paramahansa Pradibha Shakacharya Ashtottara Shatashi Srimad Sri Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Gaura Premanandi Hare Krishna. Well, it's a pleasure to be here tonight and have this opportunity to address all of you on the subject matter of Bhagavad Gita. तो आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और
मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप लोगों के सामने कुछ भगवत गीता के ऊपर पेश करने का। So today we are reading from the second chapter, text number 3. तो आज हम दूसरे अध्याय भगवत गीता के श्लोक नंबर 3 से चर्चा करेंगे। Klaibyam-asmakam-apata क्लेभ्यमास्मगमपार्थ Naitatvayupapadyate नैतत्वै उपपद्यते Shudram hridayabdorbalyam शूद्रं हृदय दौर्बल्यं Bhaktotishta parantapa त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप Klaibyam-asmakam-apata क्लैबमास्मगद्गमपार्थ Naitatvayupapadyate नैतत्वै उपपद्यते Shudram hridayadorbalyam शूद्रं हृदय दौर्बल्यं Bhaktotishta parantapa त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप Klaibyam-asmakam-apata क्लैब्यमास्मगमपार्थ Naitatvayupapadyate नैतत्वै उपपद्यते Shudram hridayadorbalyam शूद्रं हृदय दौर्बल्यं Bhaktotishta parantapa त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप क्लैब्यमास्मगमपार्थ Klaibyam-asmakam-apata नैतत्वै उपपद्यते Naitatvayupapadyate शूद्रं हृदय दौर्बल्यं Shudram hridayadorbalyam त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। Word for word. सो शब्दार्थ इस प्रकार है। क्लेबियम, आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। क्लेबियम निपुंसकता मास्मा Masma मत गमः Gama प्राप्त हो पार्थ Partha हे पृथा पुत्र न Na कभी नहीं एतत् Etat यह त्वयि Dai तुमको उपपद्यते Upadyate शोभा देता है शूद्रम Shudram तुच्छ हृदय हृदय की दौर्बल्यम दुर्बलता त्यक्त्वा त्याग कर उत्तिष्ठ खड़ा हो परंतप हे शत्रुओं का दमन करने वाले। तो इसका जो अनुवाद है इस प्रकार से है। हे प्रतापुत्र इन हीन निपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तात्पर्य अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा शब्द प्रथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वो केवल नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाएं। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण की प्रत्यक्ष निर्देशन में
ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। Om Ajnanatimanandasya Gananjanashalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sapidam Yena Bhutale Swayam Rupakata Mahyam Tadati Swapadantikam Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. The first word in this verse, Klaipyam, impotence. Krishna is criticizing Arjuna because a Kshatriya should be very powerful. तो यहाँ पे जो पहला शब्द का इस्तेमाल हुआ है क्लेब्यम यानी निपुंसकता, सो ये जो है अर्जुन का ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय है और बहुत ही शक्तिशाली उनका जो है व्यवहार होना चाहिए था। In the previous verse, he said, Anarya. This is not how one should, how an Arya, a person who is progressing toward Krishna, how they should act. तो पिछले श्लोक में अनार्य शब्द का जो है उच्चारण किया था, जिसमें ये बताया था कि जो आर्य नहीं है, सो वास्तव में अर्जुन आर्य समाज के थे, यानी कि आर्य परिवार के थे। आर्य होने के नाते उनका जो है क्षत्रिय भाव, एक शक्तिशाली भाव सामने आना चाहिए था। Again, referring back to the previous verse, Vishame Samupastitam, that in this is a moment of crisis. This is a moment where you have to make the proper decision. तो पिछले श्लोक में जो शब्द आया विषमे अनुपस्थितम, यानी ये वो समय था जब आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको दृढ़ निश्चय एक डिसीजन लेना चाहिए। An intelligent person sees every moment in their life as Vishame Samupastitam, as a moment when I must make the proper decision. तो एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसकी ये स्वभाव होता है कि वो हर क्षण को जो है विषमे अनुपस्थितम की तरह लेता है, यानी हर क्षण को बहुत ही गंभीरता से उसमें निश्चय लेने के स्वभाव से वो हर क्षण को लेता है। Because the three modes of nature, Sattva gun, Rajagun, Tamagun, are competing to control us. They're trying to engage us in some material activity. तो जितने भी ये तीन गुण हैं, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, तो इन तीनों के बीच में प्रतिस्पर्धा चलती है हमको नियंत्रण करने के लिए। And therefore, that moment of crisis means, really, do I want Krishna or do I want Maya? तो उस समय पे जो क्षण होता है उसमें हमसे हमेशा ये प्रश्न उठाया जाता है कि क्या हमें इस समय पे माया चाहिए या क्या हमें कृष्ण चाहिए। Every moment in our life, we are making this decision. तो हर क्षण हम इस फैसले को लेते हैं कि क्या हम माया चाह रहे हैं या कृष्ण चाह रहे हैं। But we think that, no, I have independence and I can make something happen by my making more money, by getting a better position, etc. सो हमें ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्र हैं और इस प्रकार हम अपने इस समस्याओं का जो है हल निकाल सकते हैं, ज़्यादा धन कमा के, यश कमा के। इस प्रकार से हमारी स्वभाव होती है। So in this particular verse number 3, Krishna is referring back to the end of chapter 1. तो वास्तव में इस तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण पहले अध्याय के अंत का जो है थोड़ा सा दृष्टांत लेकर के इस तीसरे श्लोक को बोले हैं। Arjuna gave so many arguments as to why he shouldn't fight. तो पहले अध्याय में अर्जुन कई सारे श्लोकों में
ये बताया कि वो क्यों नहीं लड़ेंगे। He was saying, Kulakshaya, that this will be the destruction of family values. तो अर्जुन ने इस प्रकार बोला कि ये कुरुक्षय होगा, यानी ये जो है पूरे कुरु जो परिवार है उसका नाश कर देगा ये जंग। Strikshaya, that women will be unprotected. और इस प्रकार स्त्री क्षय यानी स्त्रियां भी जो हैं असुरक्षित हो जाएंगी इस युद्ध की वजह से। But Krishna said that this is just your justification to do what you want. लेकिन भगवान कृष्ण इन सारे अर्थों को, इन सारे तर्कों को काट कर बोलते हैं कि वास्तव में ये सिर्फ केवल आपकी मनोकल्पना है। Of course, the fact that Arjuna is speaking with Krishna means that he actually wants to do what Krishna said, but he wants to convince Krishna that to do what he wants. तो वास्तव में जो अर्जुन कृष्ण को तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे कुछ इस प्रकार का भाव जागृत होता है कि अर्जुन चाहते हैं कि कृष्ण वो करें जो अर्जुन चाहते हैं। Just like we may accept a guru, but we want the guru to arrange our life in the way that I conceive that would be best for me. तो जिस प्रकार कई बार लोग गुरु को अपनाते हैं, लेकिन वो गुरु से कुछ इस प्रकार का स्वभाव चाहते हैं जैसा वो उनसे चाहते हैं, मतलब जैसा वो चाहते हैं वैसा गुरु करे, तो इस प्रकार से वो गुरु को अपनाते हैं। We come before the deity of the Lord, but we want the deity to do what I want. तो हम भगवान के पास जरूर आते हैं विग्रह रूप में, उनके सामने आते हैं दर्शन करने, लेकिन वास्तविक रूप में हमारी इच्छा होती है कि वो विग्रह वही करें जैसा हम चाहते हैं। So, because we're very attached to external things, क्योंकि हम जो है बाह्य चीजों से बहुत आसक्त हैं, and we think that that this is the most important thing in life. और हमें यही बाह्य चीज जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज लगती है अपने जीवन में। And therefore, Krishna says here, Shudram Hridaya Dharmanyam, that this is weakness of the heart. इसीलिए ऐसी इच्छाओं को भगवान कृष्ण यहाँ पर शुद्रम हृदय दौर्बल्यम से संबोधित करते हैं, यानी ये हृदय की दुर्बलता है। And Shudram means very insignificant. और शुद्रम का मतलब है बहुत ही छोटा, मतलब Just like there are four, according to Srila Bhaktivinoda Thakur, there are four types of weakness of the heart. तो भक्ति विनोद ठाकुर के हिसाब से 4 प्रकार के हृदय दौर्बल्यम होते हैं। The first one is Shudram, or trying to remember the exact term, Tucha Sakti, which means I am a friend of the insignificant. I want insignificant to be very close to me. ये भक्ति विनोद ठाकुर जो 4 प्रकार के हृदय दौर्बल्य बताते हैं उसमें से सबसे पहला है तुच्छ आसक्ति, यानी जो तुच्छ है, बहुत निंदनीय है, तो उससे जो है आसक्ति होना जो है वो पहला हृदय दौर्बल्यम कहलाया जाता है, तुच्छ आसक्ति। It basically means that I'm very attracted to things that have no relation to Krishna. यानी मैं ऐसी चीजों के प्रति आसक्त हो रहा हूँ जिनका कोई कृष्ण के साथ संबंध ही नहीं है। Just like social media. जैसे कि सोशल मीडिया। Of course, some people preach on social media. हालांकि कई लोग जो हैं प्रचार करते हैं सोशल मीडिया का यूज करके। But if you compare to how much time people spend on social media hearing about Krishna or hearing about someone else, it probably someone else would be much greater. लेकिन अगर आप आकलन लगाएं कि लोग कितना समय सोशल मीडिया पे भगवान के बारे में श्रवण करते हैं और कितना माया के बारे में श्रवण करते हैं, सो माया का जो भार है वो कई गुना ज्यादा है। And any type of when we hear about someone, we should pick the person who's most worthy of being heard about. तो जब हम किसी व्यक्ति को चुनते हैं या किसी प्रवक्ता को चुनते हैं सुनने के लिए, तो हम इस प्रकार से आकलन लगाते हैं कि ये बहुत पॉपुलर है या बहुत वोटेड है, तो इसीलिए हम इस व्यक्ति से सुनेंगे। Just like Krishna's one of Krishna's names is Uttama Shloka. He is the one who is glorified by beautiful shlokas. तो भगवान कृष्ण का कई नामों में से एक नाम है उत्तम श्लोका, यानी बहुत सुंदर
श्लोकों से भगवान की गुणगान की जाती है। Krishna produces unlimited wonderful things. भगवान कृष्ण अनगिनत जो है बहुत ही ऐश्वर्यवान चीजें जो है उत्पन्न करते हैं, And everything that Krishna produces is permanent. और जो भी भगवान कृष्ण उद्भूत करते हैं वो स्थायी होता है, And everything we produce is temporary. और जो भी हम उत्पादन करते हैं वो सब अस्थायी होता है। So this is one type of weakness of the heart. तो इसीलिए इस प्रकार की जो आसक्ति है ये पहला हृदय दौर्बल्यम है, Another type is called kuti nati. और दूसरा प्रकार का हृदय दौर्बल्यम है कुटी नाटी। Kuti nati means duplicity. कुटी नाटी मतलब डुप्लिसिट, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, Or lack of simplicity. या जो है सरलता का ना होना। Simplicity means what I say is what I do. सरलता का मतलब ये है, सरल परिभाषा सरलता की ये है कि जो मैं बोलता हूँ वही मैं करता हूँ। And complication means I say something and then I have to figure out how to make everyone believe that that's what I do. और कॉम्प्लिकेटेड होने का मतलब ये है कि मैं कुछ बोल देता हूँ लेकिन मैं फिर तौर तरीके ढूंढता हूँ लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि जो मैं बोलता हूँ वही मैं करता हूँ। So duplicity, Krishna says later in Bhagavad Gita, a Brahminical principle is arjavam, which means honesty. तो इसीलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि ब्राह्मण का एक गुण है आर्जवम। आर्जवम का मतलब है सरलता। Honesty means that whatever I don't want to project myself to be something that I am not. तो आर्जवम का मतलब है ऑनेस्टी, यानी मतलब सॉरी महाराज, I don't want to make people believe I'm something that I am not. ओके। सो मैं सरलता और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ऑनेस्टी को हिंदी में ईमानदारी बोलेंगे, यानी कि मैं जो नहीं हूँ वो मैं दूसरे लोगों को भी नहीं चाहता कि लोगों में गलत धारणा हो कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ। वास्तव में ईमानदारी का मतलब जैसा मैं हूँ वैसे ही लोग सोचें। Just like most people, most of us, we like people to think very positively of us. जनरली लोगों में धारणा होती है कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें, But on the spiritual platform, the most positive thing is to be the most insignificant person. लेकिन आध्यात्मिक धरातल में सबसे पॉजिटिव होने का ये मतलब है कि हम सबसे अपने आप को तुच्छ समझें। But in the material atmosphere, to be the most insignificant person is torture. लेकिन भौतिक धरातल पर अगर देखें तो सबसे तुच्छ होना जो है वो बहुत ही निंदनीय है, This is also called humility. और इसको जो है विनम्रता भी बोला जाता है कई बार। But always when I ever speak about humility and tolerance, which Lord Chaitanya Mahaprabhu recommends, और जब भी मैं इस तितिक्षवा और विनम्रता के बारे में जो मैं कभी बोलता हूँ, जो चैतन्य महाप्रभु इतना उस पर जोर देते थे, immediately someone will say, but then people will take advantage of me. तो तुरंत मुझे जो है पब्लिक से रिएक्शन मिलता है कि यदि हम इस प्रकार से विनम्र बनेंगे तो फिर लोग हमारा फायदा उठा सकते हैं। But the reality is, no one can take advantage of you. लेकिन वास्तविकता तो ये है कि कोई भी हमारा जो है दुरुपयोग नहीं कर सकता। You can only make yourself susceptible to Maya. You can only make yourself. You can only put yourself under the control of Maya. By being humble? You can only put yourself under the control of Maya. तो वास्तव में आप केवल माया के ही अपने वश में अपने आप को डालते हैं। But that is our decision. लेकिन वास्तव में ये हमारा ही निश्चय है। The Lord Himself took the form of Rishabdev. तो भगवान जो है ऋषभ देव के रूप में आए, And Rishabdev, he is the Supreme Lord, but he wandered as a great sage, and people apparently took advantage of him. तो ऋषभ देव साक्षात भगवान के ही अवतार थे, लेकिन वो इस प्रकार से चलते थे जैसे सबसे जो है वो अलग हो गए हैं, बिल्कुल एक अवधूत के भांति चलते थे। As Krishna says in Bhagavad Gita, Matra Sparshas Tukonteya Shitoshna Sukha Dukataha, that these dualities of the world will always affect us. तो जिस प्रकार भगवद गीता में भगवान बोलते हैं मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा, यानी जो संसार में द्वंद्व है
ये हमेशा हमको जो है पीड़ित करती रहेगी, because the material world is dukkhalayama shashvatam. It is full of suffering and it is temporary. क्योंकि भौतिक संसार जो है वो दुखालय में शाश्वतम है, जिसका मतलब वो हमेशा दुख देता है और साथ में वो अशाश्वत भी है। But we think we're so desirous of enjoying because the nature of the soul is ananda that we try to extract some pleasure from the material world. लेकिन हमारी भोगने की जो इच्छा वो इतनी तीव्र है कि हम हमेशा जो है भौतिक तत्वों से कुछ ना कुछ रस या कुछ भोग तत्व निकालने का प्रयास करते रहते हैं। But even if you extract that pleasure, how long will it last? लेकिन वास्तव में जितना भी आप उसमें भोग्य वस्तु अगर निकाल भी लेंगे तो कब तक वो आपके साथ रहेगी। Just like many years ago, I was preaching every week. I would go and preach in the prison. तो कई साल पहले मैं जो है प्रचार करने के लिए जेल में, कारागार में जाया करता था। So one time I was speaking all these prisoners. I said, "So there's so much suffering in this world." तो मैं एक दिन जेल में गया और इन वहाँ पर जो कैदी थे उनके बारे में मैं बता रहा था कि कितना दुख है संसार में। And then one of them said, "Oh, I'm not suffering." तो उनमें से एक कैदी ने बोला कि मुझे नहीं लगता है कि मैं मतलब दुख में हूँ। He said, "I was suffering before I came to jail." तो वास्तव में मैं कष्ट में था जब जेल से पहले, तब कष्ट में था। I had to go out and steal to get something to eat, and now I get 3 meals a day. तो मुझे पहले अपने एक भोजन के लिए जो है चोरी करनी पड़ती थी और यहाँ पर इस जेल में मुझे आराम से 3 टाइम का भोजन मिल रहा है। And I said, "Yes, but you will die." तो महाराज ने बताया कि हाँ, वास्तव में ये बात सही है, लेकिन एक कष्ट जरूर है कि आपको मरना पड़ेगा। I said, "Oh, that's a long way off." तो उसने बोला वो तो बहुत दूर की बात है। So it doesn't matter because the soul is so desirous to enjoy that we try to make a miserable condition into something acceptable. तो इसीलिए जो आत्मा की भोग करने की इच्छा इतनी प्रबल है कि वो एक दुखदायक स्थिति में भी अपने आप को सुखदायक स्थिति मान लेता है। Just like in 1978, I was in Argentina in South America, and they had a big revolution. तो जैसे 1978 में मैं अर्जेंटीना में था और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रांति का कुछ कार्यक्रम चल रहा था। And then the money was worth like 2 pesos to $1, and it went down to about 1.5 million to $1 in one day. So वहाँ पर जो है पैसों का जो मूल्यांकन होता है डॉलर के साथ, वो कई गुना नीचे घट गया। So I wanted to buy, a few days later, I wanted to buy a drink, and I had to take like this big pile of money, one drink. So वहाँ पर उस समय पे पैसों का मूल्य इतना घट गया कि मैं एक पानी या कुछ जूस का बोतल लेने जा रहा था और उसके बदले मुझे इतना भारी पैसों का गड्डी देना पड़ा। I said, "What a country! What a country this is!" मैंने सोचा कि किस प्रकार का देश है। He says, "Yes, isn't it wonderful? We eat so nicely here." So this Isn't it wonderful? We eat so nicely here. So वो बोले कि ये तो बहुत अच्छा देश है क्योंकि हम इतना सुंदर रूप से यहाँ पर भोजन प्राप्त करते हैं। Another time I was distributing books in the desert in the US. तो एक समय पे मैं अमेरिका में जो है एक डेजर्ट रेगिस्तान के इलाके में मैं जो है किताब वितरण कर रहा था। In this desert there was not even one plant. You couldn't see a plant anywhere, only rocks and sand. और इस रेगिस्तान में जो है केवल रेत ही रेत थी और एक भी पेड़ या वृक्ष नहीं था। So I stopped for petrol. I said, "What a place! Like this is miserable." तो मैं वहाँ पर पेट्रोल भरने के लिए रुका और मैंने बोला कि ये किस प्रकार की जगह है, कितनी अजीब सी जगह है। And the man there said, "Yes, it's so beautiful when the sun reflects off of the rocks." तो लेकिन उस व्यक्ति ने जो वहाँ पेट्रोल पंप पे खड़ा था उसने बोला कि नहीं, ये तो वास्तव में बहुत सुंदर जगह है। जब आप देखेंगे सूर्य किस प्रकार से वहाँ रखे पत्थर से टकरा के आप तक पहुँचता है तो बड़ा सुंदर दृश्य होता है। So this is called Boma Ijadi, that the place I was born is so wonderful. तो इसे बोलते हैं भौम इज्जती, यानी जिस जगह पे मेरा जन्म होता है वो वास्तव में पूजनीय है।
Doesn't matter where it is, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो वास्तव में जगह है कहाँ, कहीं भी क्यों ना हो, except for Armenia. एक्सेप्ट फॉर अर्मेनिया। अर्मेनिया एक ऐसा जगह है, I was going to Armenia one time, and I to distribute books, and so I went to the consulate to get visa. He said, "Why do you want to go?" तो अर्मेनिया में जो है किताब वितरण करने के लिए वहाँ का वीज़ा लेने के लिए गया, तो वहाँ के कॉन्सुलेट ने बोला कि आप क्यों अर्मेनिया जाना चाहते हैं? And I said, "Oh, I want to go for tourism." तो मैंने बताया कि मैं वहाँ पे टूरिस्ट की भांति टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहता हूँ। He said, "Nobody goes to Armenia for tourism." तो उसने बोला कि अर्मेनिया कोई भी ऐसा टूरिस्ट नहीं है जो अर्मेनिया जाता है घूमने के लिए। So I said, well, I want to go distribute these books about Krishna. तो फिर मैंने बताया कि मैं ये पुस्तक हैं भगवान कृष्ण की, ये देने के लिए जा रहा हूँ। He said, all right, gave me the visa, but nobody goes as a tourist. तो फिर उसने जो है वीज़ा में स्टैम्प कर दिया, लेकिन बताया कि टूरिस्ट घूमने के लिए कोई भी आज तक अर्मेनिया नहीं गया। So this is our tendency. We think in the Bhagavatam it says there are 4 things that are like chains that keep us tied to this world. सो भागवतम में 4 प्रकार के चेन्स बताए गए हैं जिससे व्यक्ति को इस संसार से बांधा जाता है। First, kunape dhatuke, that this body which is like a bag of elements. तो पहला है कुनपे त्रिधातुके, यानी ये जो शरीर जो कि भौतिक तत्वों से बना है। Oh, you know, it's nicely packaged. We have skin, and you know, the skin looks okay. We like it. सो बहुत अच्छा तरीके से इसको पैकेज किया गया है, बहुत अच्छा सुंदर हमें त्वचा मिली है, But nobody likes what's inside. लेकिन वास्तव में इसके अंदर का जो मटेरियल है वो किसी को पसंद नहीं। If you somebody cuts their arm, just see, look how wonderful my body is. तो अगर किसी का कुछ हाथ पैर कट जाता है तो वो क्या बोलेगा, कितना सुंदर है अंदर का मटेरियल, जरा देखिए। Prahlad Maharaj, he said, what does this body produce? सो प्रहलाद महाराज ने बोला कि ये शरीर क्या उत्पन्न करता है? 3 things: 3 चीजें, urine, stool, and bad odors. मल, मूत्र और गंध, दुर्गंध। So what is the use of this body? तो वास्तव में ये शरीर का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? It's very useful for serving Krishna. तो एक ही इसका काम आ सकता है, वो है कृष्ण की सेवा। That's why we have it. इसीलिए ये शरीर हमको मिला है। Because it's just like an automobile. No, it's so much trouble to take care of it. You have to put petrol, you have to change the oil, you have so many things. तो ये एक वास्तव में गाड़ी के समान है जिसको बहुत मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। आपको पेट्रोल भरना पड़ता है, टायर में हवा भरना पड़ता है। इस प्रकार गाड़ी को मेंटेन करने के लिए कुछ मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। But because it takes us from one place to another, we tolerate. लेकिन क्योंकि गाड़ी का एक उपयोग भी है, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, इसीलिए गाड़ी को हम मेंटेन करने का जो एफर्ट है वो हम तकलीफ उठाने के लिए तैयार होते हैं। But one time, Srila Prabhupada said, this body is very dear to us. लेकिन एक बार श्रीला प्रभुपाद जी ने बोला कि ये शरीर बहुत ही हमें प्रिय है। And so Srila Prabhupada said, why is the body dear to us? तो श्रीला प्रभुपाद ने पूछा कि क्यों हमारा शरीर बहुत प्रिय है? And one devotee said, because it's Maya, illusion. We think we're this body. So क्योंकि फिर एक भक्त ने बोला कि प्रभुपाद जी इसलिए क्योंकि ये माया के द्वारा निर्मित है, इसीलिए। And Prabhupada said, no. So प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। Then another devotee said something else, another one something else. तो दूसरे भक्त ने कुछ और उत्तर दिया, तीसरे ने कुछ और उत्तर दिया। And Prabhupada said, we love ourselves because we are part of Krishna. And internally, we love Krishna, and therefore we love ourselves. तो वास्तव में हम अपने आप को प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और भगवान हमारे अंदर हैं, इसलिए हम अपने आप को प्रिय हैं। Therefore, we love this body because we think we're this body, and because we love Krishna and we're part of Krishna, therefore we love this body. So a devotee becomes happy when they see that everything belongs to Krishna. So भक्त बहुत प्रसन्न हो जाता है जब वो देखता है कि सब चीज भगवान कृष्ण की है। Because if everything belongs to Krishna, then we see
that there's some permanent purpose to everything we do. तो जब हम देखते हैं कि सब चीज भगवान कृष्ण की है, तब हम वास्तविक रूप में हर चीज का उपयोग, उसका पर्पस देख पाते हैं। Because if we do something for ourselves, then ultimately we can see it's temporary. क्योंकि यदि हम कोई कार्य सिर्फ अपने लिए करते हैं तो वास्तव में वो कार्य अस्थायी होगा। But even though the act of doing something for Krishna may seem to be temporary, the effect is permanent. लेकिन कोई कार्य जो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, ऐसा कार्य दिखने में अस्थायी लग सकता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, उसका जो निचोड़, उसका जो फल है, वो स्थायी होता है। Krishna says, Neha Vikramana Shusti Pativayo Nivijate Swapamapyasya Dharmasya. Even if you do something very insignificant, the result will be permanent. तो भगवान कृष्ण बोलते हैं नेहा विक्रम नाशोष्टि प्रत्यवायो न विद्यते, यानी कि जो कार्य थोड़ा सा भी अगर अल्प कार्य भगवान की सेवा के लिए किया जाता है तो वास्तव में उसका फल स्थायी होता है। Just like when Lord Rama was building the bridge to Lanka, Hanuman was coming with a big mountaintop, and there was an insignificant insect carrying a small grain of sand. And Hanuman said, "Please go to one side. Can't you see I'm doing something very, very important?" तो जब भगवान राम लंका के लिए जो पुल बना रहे थे, तो उस समय पे हनुमान जी जो है बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ एक छोटी सी गिलहरी थी जो कि थोड़ी थोड़ी रेत जो है उस पुल के आगे बनाने के लिए डाल रही थी। तो हनुमान जी के सामने वो गिलहरी आ जाती है, तो हनुमान ने कहा कि क्या आप देखते नहीं मैं कितने बड़े बड़े पत्थर ले जा रहा हूँ। But Lord Rama said, "No, Hanuman. He is doing everything to his fullest capacity. Therefore, he's doing just as much as you." तो फिर भगवान राम ने फिर लेकिन हनुमान जी को रोक दिया और बोला कि तुम भी अपने शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो और वास्तव में ये गिलहरी भी अपने शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर रही है, तो इसलिए वास्तव में मेरी नज़र में तुम में और इस गिलहरी में कोई फर्क नहीं है। And this is what makes bhakti so wonderful. इसीलिए भक्ति जो है इतनी अविश्वसनीय है, वंडरफुल है। Because Krishna just wants to see, because he's in our hearts, that we're doing the best we can to serve him. क्योंकि भगवान कृष्ण ये देखना चाहते हैं कि हम कितना अपना शक्ति, अपना बेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। And therefore Krishna says, Patram Pushpam Palam Toyam Yome Bhakta Prayachati. He wants to see that we're doing it to please him. It doesn't matter what we're doing. सो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी भगवान देखते हैं कि क्या ये वास्तविक रूप में ये सेवा मेरे संतुष्टि के लिए कर रहा है या नहीं कर रहा है। As long as we're doing it to our maximum capacity. और क्या हम वो कार्य अपनी बेस्ट कैपेसिटी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। But if we think we're this body and we don't understand that it belongs to Krishna, then it becomes a great burden. लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि ये शरीर भगवान का नहीं है, तो फिर ये वास्तव में शरीर हमारे लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। There are 4 types of forgetfulness in relation to Krishna. तो भगवान के संबंध में 4 प्रकार के भूलने के परिभाषाएं बताई गई हैं। The first one is called Swatattva Brahma. We forget about who we are. तो ये 4 प्रकार के भ्रम में सबसे पहला है स्व तत्व भ्रम, यानी हम अपने तत्व के बारे में भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। This is the condition of almost all of us in this world. तो ये वास्तव में हम सबकी स्थिति है। We accept so many designations, upadhis, and we think that I'm a man, I'm a woman, I'm this or that. सो हम बहुत सारी उपाधियां ले लेते हैं, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस प्रकार से। Just like a lot of times in the temple, I see a lot of the men, they're gathered around Ramachandra, and the women are on the side of Radharani. तो जैसे मैं देखता हूँ कि कई बार दर्शन करते समय भगवान राम के दरबार के सामने कई सारे जो मेल लोग हैं, पुरुष हैं, वो सब उधर खड़े होते हैं और स्त्रियां जो हैं ज़्यादातर राधा रानी के सामने खड़ी होती हैं। Just like one devotee told me, I want to be like
Arjuna. जैसे एक भक्त ने मेरे को बोला कि मैं अर्जुन जैसा बनना चाहता हूँ, And one God sister told me, oh, I want to be a wife of Krishna like Rukmini. और एक गुरु बहन ने बताया कि मैं जो है भगवान कृष्ण की पत्नी बनना चाहती हूँ जैसे रुक्मिणी। So I said to them, how do you know you're a man or how do you know you're a woman? तो मैंने उनको उत्तर दिया कि आपको कैसे पता कि आप पुरुष हैं या फिर आप स्त्री हैं वास्तव में? Did Krishna reveal your permanent, your eternal identity? No. क्या भगवान कृष्ण ने आपका वास्तविक स्वरूप आपको जो है दर्शा दिया है? And therefore, Lord Chaitanya recommends Krishna Nitya Das. First realize that you are the eternal servant of Krishna. तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण नित्य दास, यानी सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम ये सब उपाधियां नहीं है, हम कृष्ण के वास्तव में दास हैं। And this is the second type of forgetfulness, Paratattva Brahma. और We forget the position of the Supreme Personality of Godhead. और जो दूसरा भ्रम है 4 प्रकार के भ्रम में, वो है परतत्व भ्रम, यानी हम भगवान की स्थिति को भूल जाते हैं, परतत्व भूल जाते हैं। And the third type of forgetfulness is Sadhya Sadhana Brahma. We don't understand the process of approaching Krishna or how to make Krishna the ultimate goal of our life. और तीसरा प्रकार का भ्रम है साध्य साधना भ्रम। तो इस भ्रम का अर्थ है कि हम साध्य यानी जो लक्ष्य है उसको भी, उसमें भी भ्रमित रहते हैं, और उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी, वो साधना, उसके लिए भी हम भ्रमित रहते हैं, अनजान रहते हैं। And the fourth type is Virodhi Vishaya Brahma, that we forget, we're attached to things that are not favorable for Krishna's service. और चौथा प्रकार का भ्रम है विरोधी विषय भ्रम, यानी वो सारी चीजें जो भगवान के लिए प्रतिकूल हैं, उन चीजों से भी हम अनजान रहते हैं। So Krishna consciousness, Bhagavad Gita teaches us to remember who we are, who is Krishna, what is the goal of life, and what does Krishna want us to do. तो इस प्रकार भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि किस प्रकार इस भ्रम से ऊपर उठा जाए और ये समझा जाए कि मैं कौन हूँ, भगवान कृष्ण कौन है, और मेरा नित्य कार्य क्या है। Because if we have forgetfulness of our identity or Krishna's identity, then we get the third type of Hridaya Daurbalyam. क्योंकि यदि हम भगवान के बारे में और अपने बारे में अनजान रहेंगे तो फिर हमको उसका नतीजा जो है वो तीसरा हृदय दौर्बल्यम के रूप में प्राप्त होगा, Which is Matsarya. जो कि है मत्सर। When we analyze the Sanskrit word Matsarya, it means mat, myself, sara, that I think I am the essence. तो मत्सर्यम का मतलब ये है कि मत मतलब मैं, और सर्य मतलब मैं ही इस संसार का जो निचोड़, वो मैं ही हूँ। And therefore, everything, we become envious of other people. और इस प्रकार जब हम अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं तो फिर हम बाकी सभी लोगों से द्वेष करते हैं। And the fourth type is called Swapratishtaha, that we want recognition and fame. और जो चौथे प्रकार का हृदय दौर्बल्यम है उसको बोलते हैं स्वप्रतिष्ठा, यानी अब हम जो है मान सम्मान की आकांक्षा करने लगते हैं। Just like if you start speaking about Krishna, then people say, "Oh, I'm busy. No, I have something to do." तो जिस प्रकार जब हम भगवान कृष्ण के बारे में जब बोलने लगते हैं तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं अभी मेरे पास समय पूरा हो गया है, अभी मेरे को कुछ और करना है। But if you listen to them talking about themselves, they can speak for hours. और यदि हम उनके बारे में ही बात करें तो फिर वो बड़े शांति से सुनते हैं, और अपने बारे में बोलने का मौका मिले तो भी घंटों घंटों बोल देते हैं। So this is the material. These are the four types of weaknesses of the heart. तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के हृदय दौर्बल्यम होते हैं। And here Krishna said, Kshudra, it is all insignificant. और यहाँ पर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये सब शुद्र है, यानी बहुत ही तुच्छ है। And then he says, Tvakta Utishta. Therefore, Arjuna, get up, otherwise wake up. Stop giving your false arguments that you gave in the previous chapter. और इसीलिए भगवान यहाँ पर त्यक्तोत्तिष्ठा शब्द का प्रयोग करते हैं कि उठो अर्जुन, और ये जो मिथ्या प्रकार के आप
जो आरोप लगा रहे थे पिछले अध्याय में, उन सबको त्याग करके खड़े हो जाओ। As uh, Srila Prabhupada says in the purport, that Arjuna might argue that he would give up the battle on the grounds of his magnanimous attitude for the most respectable Bhishma and his relatives. जैसे कि यहाँ पर तात्पर्य में लिखा गया है कि अर्जुन ये तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है। In other words, we all have a tendency to make an excuse why I don't have any time to serve Krishna. तो उसी प्रकार हम भी कई प्रकार के जो है एक्सक्यूज, बहाने बना सकते हैं कि मेरे पास इस वजह से या उस वजह से भगवान की सेवा करने के लिए समय नहीं है। I'll surrender to Krishna as soon as I make a little more money. और जैसे ये समस्या समाप्त हो जाएगी या कुछ धन मेरे पास आ जाएगा, तब मैं भगवान कृष्ण की सेवा जरूर करूंगा। I'll surrender as soon as I finish this. और जैसे ही मैं ये कार्य जिसमें लगा हूँ ये खत्म हो जाएगा, तब मैं भगवान की सेवा करूंगा। Krishna, please take away all these material desires except for these three. और उसी प्रकार हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं कि मेरी सारी इच्छाओं को आप समाप्त कर दें हे कृष्ण, लेकिन ये जो तीन हैं इनको छोड़ के। But Krishna is not here to do business with us. लेकिन भगवान कृष्ण हमारे साथ व्यापार करने के लिए नहीं आए हैं। He has an expert business representative. उनके पास एक बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेटिव यानी एक प्रतिनिधि है, And her name is Maya. और उनका नाम है माया। She is the best businesswoman. और वो जो है व्यापार प्रतिनिधि जो है सबसे बेस्ट है। And if anyone can learn from her, you will be the wealthiest person in the world. और यदि आप उनसे प्रशिक्षित होंगे तो आप सबसे धनी व्यक्ति बन सकते हैं। Because she attracts you into a deal. Come, enjoy. क्योंकि वो जो है एक डील करती हैं कि आप मेरे पास आइए और बहुत भोगने का मौका मिलेगा। Then she takes everything away. और फिर वो हमसे सब कुछ ले लेती है। And then she says, come, give me everything. और फिर वो हमें बुलाती है कि सब मेरे को दे दो। And then she takes everything away. और इस प्रकार वो सारी चीजें हमसे ले लेती हैं। And she does it again and again and again. और इस प्रकार से वो बार बार इसी प्रकार से व्यवहार करती है। Life after life. और जन्म जन्मांतर यही चलता रहता है। And we keep coming back and giving more to Maya. और हम बार बार आते हैं माया को और देने के लिए। So who can do that degree of business? तो इतना महान व्यापार और कौन कर सकता है भला? So here Srila Prabhupada says that this is all weakness of the heart. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये सब हृदय दौर्बल्यम के अंतर्गत आता है। You are Parantapa. लेकिन आप परंतप हो। Means Paramtapa. You should be very forceful. You should be very strong. You're a Kshatriya. तो परंतप मतलब आप क्षत्रिय हैं। अर्जुन के संबंधित करते हुए बोल रहे हैं कि आप क्षत्रिय हैं, शक्तिशाली हैं। Just like a Brahmin is very forceful in austerity and sacrifice. तो जिस प्रकार एक ब्राह्मण जो है वो यज्ञ और तपस्या में बहुत ही स्ट्रांग, बड़ा ही प्रबल होता है। A Kshatriya is very forceful in giving justice and protection. उसी प्रकार क्षत्रिय जो है वो न्याय और सुरक्षा देने में बहुत ही प्रबल होता है। A Vaishya is very forceful in producing for the benefit of others. और वैश्य जो है वो प्रबल होता है उत्पादन करने के लिए। And a Shudra works very hard. और शूद्र जो है मेहनत करता है बहुत। So everyone should be forceful in their activity. तो इस प्रकार हर व्यक्ति को बड़े ही सशक्ता और प्रबलता के साथ अपने कार्य को करना चाहिए। But a Vaishnava, a devotee of Krishna, is beyond all of this. लेकिन एक वैष्णव जो है इन चारों प्रकार के कैटेगरी से बाहर होता है। When they need to be tolerant, they are the most tolerant. जब सहन शक्ति की बात आती है तो सबसे ज्यादा सहनशील वैष्णव होता है। And when they need to fight, they fight better than anyone. और जब लड़ने की बात आती है तो वैष्णव सबको परास्त करके सबसे अच्छा लड़ाकू व्यक्ति हो जाता है। The Pandavas defeated everyone in the battle of Kurukshetra. जिस प्रकार पांडवों ने सभी लोगों को हरा दिया कुरुक्षेत्र के युद्ध में। Dhruva Maharaj conquered all of his enemies. और ध्रुव महाराज ने अपने सारे शत्रुओं को दमन कर दिया। Parikshit Maharaj
was so powerful that no one would challenge him. परीक्षित महाराज इतने शक्तिशाली थे कि कोई भी परीक्षित महाराज के सामने चुनौती नहीं दे सकता था। So Srila Prabhupada used to say, a Vaishnava is naturally very tolerant, just like Arjuna. तो वैष्णव जो है वो बड़ा ही स्वाभाविक रूप से बड़ा ही सहनशील होता है, जैसे अर्जुन। But if they have to fight, they will fight better than anyone. लेकिन अगर लड़ने का मौका मिले तो वो सबसे अच्छे लड़ाकू व्यक्ति भी बन सकते हैं। And then Prabhupada said, why not fight? You must fight. तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्यों ना लड़ें, जरूर लड़ना चाहिए। Just like Krishna, he was fighting at 3 months old. जैसे कि भगवान कृष्ण जो 3 महीने की उम्र से ही लड़ना शुरू कर दिए थे, And he was fighting at 125 years old. और 125 साल होने तक वो लड़ाइयाँ ही लड़ रहे थे। And we also have to fight. उसी प्रकार हमें भी लड़ना है। As Krishna says in Bhagavad Gita, Prakriti Stani Karshati, this material world where you always have to fight just to survive. जैसे भगवद गीता में भगवान बोलते हैं प्रकृति स्थानी कर्षति, यानी इस भौतिक जगत में हमेशा प्रकृति के साथ एक जीवात्मा का युद्ध परस्पर चलता रहता है। But if we fight for Krishna, then everything becomes glorious. लेकिन यदि माया के बजाय अगर हम भगवान कृष्ण के लिए लड़ते हैं तो ये सब प्रशंसनीय बन जाएगा। And if we fight to try to enjoy the material world, everything becomes miserable. और यदि हम सिर्फ भोगने के लिए अगर हम लड़ाई लड़ते हैं तो फिर अंत में सब कुछ बड़ा ही निंदनीय और बड़ा ही दुखदायक बन जाएगा। There are 4 types of pleasures that we fight for. तो 4 प्रकार के भोग हैं जिनके लिए हम लड़ते हैं। The pleasure to enjoy the objects of this world, एक प्रकार का भोग है जो हम इस संसार के वस्तुओं को भोगने के लिए करते हैं, or doing sacrifices to enjoy Swarga Loka, या फिर हम यज्ञ करते हैं ताकि हम स्वर्ग लोक को भोग सकें, or to enjoy the pleasures of liberation, और या फिर हम निराकार ब्रह्म में लीन होने के आनंद को भोगना चाहते हैं, or to enjoy the pleasure of becoming one with the Lord. या फिर भगवान में एकाकार होने का जो आनंद है उसको भोगना चाहते हैं। But a devotee has a different approach. लेकिन भक्त का जो है वो एक अलग उसका जो कार्य होता है। A devotee acts for the pleasure of Krishna. भक्त केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करता है। And because the name Krishna, when we chant the Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, then when we say Krishna, it means we're offering everything to Krishna. तो जब हम इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, इसका ये अर्थ है कि हम सब कुछ भगवान कृष्ण को सौंप रहे हैं। But when we say Rama, it means everything that Krishna has, he offers to us. और जब हम राम शब्द का उपयोग करते हैं तो यानी ये इस बात को संबोधित करता है कि भगवान कृष्ण के पास सब जो कुछ है वो सब भगवान हमें देना चाह रहे हैं। So here in the Mahamantra, Krishna is giving us the best opportunity that can exist. और इस हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान कृष्ण सबसे बेस्ट हमें जो है युक्ति दे रहे हैं जो कि संभव है। He's saying, you give me what you have. तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आपके पास जो है वो आप मुझे दीजिए। So what do I have? तो मेरे पास क्या है? Few thousand rupees, few million rupees, whatever. So मेरे पास कुछ धन है, 1000 रुपए, लाख रुपए। And what does Krishna have? और कृष्ण के पास कितना है? Everything. सब कुछ भगवान कृष्ण का है। So we're giving whatever we have, which is very insignificant, to get whatever Krishna has, which is unlimited ananda. तो इसीलिए इस आदान प्रदान में हम अपनी तरफ से केवल अपना तुच्छ 1000 रुपए या लाख रुपए दे रहे हैं और वापसी में भगवान कृष्ण अपना अनंत आनंद हमें प्रदान करते हैं। This is the offer. This is the offer that Krishna is giving, is availing us to. तो ये ऑफर जो है भगवान कृष्ण से हमें प्राप्त हो रहा है। And when we chant the Mahamantra, this is what we're actually doing. तो जब हम महामंत्र का जप करते हैं तो यही वास्तव में हम लोग करते हैं। But you can't do it with the idea of getting everything. लेकिन यदि आप केवल भोगने की इच्छा से महामंत्र करेंगे तो फिर ये सही नहीं है। If you do that, you get nothing. इस प्रकार से करने से वास्तव में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। But if we do it with the idea that Krishna, I want to give you everything because
You are so wonderful. लेकिन अगर हम इस उद्देश्य से करेंगे, सेवा करेंगे कि मैं आपको सब कुछ देना चाहता हूँ क्योंकि because I want to give you everything because you're so wonderful. क्योंकि आप इतने अविश्वसनीय हैं, इसलिए मैं आपको सब कुछ देना चाहता हूँ। इस भाव से अगर हम देंगे, Because if we love someone, we automatically want to give them everything. That's the nature of real love. क्योंकि यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो ये बड़ा ही स्वाभाविक है कि हम उसको अब सब कुछ देना चाहेंगे। But if we give something with the idea of getting something in return, it's not love, it's self-interest. लेकिन यदि हम किसी को अपना जो सामग्री है वो देते हैं इस उद्देश्य से कि मुझे वापसी में क्या मिलेगा, तो वास्तव में ये प्रेम नहीं है, ये वास्तव में इंटरेस्ट है, यानी इसमें हमारी कुछ इच्छाएं हैं, भोगने की इच्छाएं हैं। So we can understand the degree of our love by how much we are willing to give everything to Krishna. तो वास्तव में हमारा प्रेम कितना है, इसका आकलन इस बात से लगाया जा सकता है कि हम कितना भगवान को देना चाहते हैं। If we think, well, let me give a little bit and see what happens. और यदि हम सोचें कि मैं कुछ दे के देखता हूँ कि क्या होता है, Krishna, I'll give you 10% and I'll see if it works out for me. I'll give you 10% and see if it works out for me. तो फिर हम सोचते हैं कि मैं सब कुछ तो नहीं दूंगा, मैं केवल 10% ही दूंगा और देखता हूँ कि मेरा काम इससे बनता है कि नहीं। But that won't work out for us. तो वास्तव में इससे काम बनेगा नहीं, Because when you give Krishna 10%, he gives you 10%. क्योंकि जब आप 10% देते हो तो भगवान भी आपको केवल 10% ही देंगे। But the other 90% you'll have to struggle for. लेकिन बाकी बचा जो 99-90% है वो उसके लिए आपको खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा। But when you give Krishna 100%, he gives you unlimited. लेकिन अगर आप अपना पूर्ण रूप से दे देते हैं तो भगवान अपना पूर्ण दे देते हैं जो कि अनंत है। But you can't think of getting anything in return. लेकिन हमें कभी ऐसी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए कि भगवान हमको क्या देना That is चाहेंगे। called faith. तो ये है श्रद्धा। So that's what Bhagavad Gita is offering us. That's what Krishna is teaching Arjuna here. तो ये चीज भगवत गीता हमें प्रदान कर रही है और यही चीज भगवान कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं। Don't think of your comfort. Don't think of your pleasure. Think of following my instruction. तो आप अपने इच्छाओं के बारे में या अपने खुशी के बारे में ना सोच करके आप केवल मेरे इंटरेस्ट के लिए कार्य करिए। And then you will be happy. तब आप वास्तव में सुखी रहेंगे। So this is Krishna consciousness. ये है कृष्ण भावनामृत। So these are some thoughts on this particular verse. I'll stop here. Any comments or questions? तो ये मेरे कुछ विचार थे इस प्रसंग में, तो कुछ प्रश्न। माइक, I think we have a microphone. yes, yes. हरे कृष्णा प्रभु जी मॉर्निंग में 3:30-4 बजे कृष्ण का ध्यान योग अगर लगा के इंसान 1 घंटा पद्मासन में उसके बाद उठता है तो उसको कितने घंटे तक नहीं सोना चाहिए या सो सकता है वो, या क्रम का क्रिया टूट जाता है नहीं सोना चाहिए? अगर क्वेश्चन आपको ना समझ में आया तो मैं रिपीट करती हूँ। हाँ, एक बार। 3:30-4 बजे कोई इंसान कृष्ण का ध्यान योग कर रहा है 1 घंटा पद्मासन में बैठ के, उसके बाद फिर वो ध्यान योग करके उठ जाता है, उसके बाद उसको सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए, और नहीं सोना चाहिए तो कितने घंटे नहीं सोना चाहिए, और नहीं सोना चाहिए तो क्यों नहीं सोना चाहिए? I remember all. Actually, it's a very complex question. She is asking that if somebody 3 o'clock in the morning, if somebody does Krishna Dhyan, meditates on Krishna, so does he need to sleep afterwards, after 1 hour of such meditation? Does he need to have a sleep afterwards, or he can stay awake till the next night? I don't know. She's saying, does he need to have more sleep if he just meditates on Krishna Dhyan, not chanting, just meditation? Does he need more sleep, any more sleep? If we meditate on Krishna,
then we don't want to sleep. तो महाराज बता रहे हैं कि यदि हम अगर कृष्ण पे ध्यान करेंगे तो वास्तव में नींद हमें आएगी नहीं. We don't need to sleep. आंसर क्लियर कर दीजिए तो इसका मतलब नहीं सोना चाहिए ना. She is again asking, does it mean that we should not sleep? महाराज ने बता दिया कि नींद की जरूरत नहीं है. हाँ तो नहीं सोना चाहिए ना. महाराज वही बता रहे हैं कि नींद की जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं सोना चाहिए. Krishna Dhyan, Krishna Dhyan, or meditating on Krishna, means that Jeev Jago, we will wake up and to our original position as a spiritual being. तो कृष्ण ध्यान का ये मतलब है कि हम जीव जागो यानी व्यक्ति जो है अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में जान ले. It means you will only sleep the minimum necessary to maintain the body and the soul together. यानी ऐसा आत्म साक्षात्कार व्यक्ति केवल उतना ही सोता है जितना उसके शरीर को निवारण करने के लिए आवश्यक है. If we're not meditating on Krishna, then we're sleeping all the time, even when we're awake. वास्तविक रूप में अगर कोई कृष्ण चिंतन नहीं कर रहा है तो वो जगे रह करके भी सो ही रहा है. This is called Jatur Diya Swapna Manorato Yata. It means that there's nighttime sleep and daytime sleep. तो एक श्लोक में बताया जाता है कि एक रात का सोना है और एक दिन का सोना भी होता है. Most people are sleeping 24 hours a day. और अधिकतर लोग जो है 24 घंटे सोते रहते हैं. But the more we meditate on Krishna, the more we wake up. और जितना हम कृष्ण चिंतन करेंगे उतना हम वास्तविक रूप में जागृत अवस्था में जाएंगे. And even we come to the point, even when our body is sleeping, our consciousness is with Krishna. और कई बार हमारा शरीर हो सकता है कि स्वप्न अवस्था में हो, लेकिन तब भी हमारी चेतना जो है हमेशा जागृत रहती है, कृष्ण के साथ संबंधित रहती है. Just like for a devotee of the Lord, when they sleep, they think, Krishna, this body belongs to you. It needs to recover. It needs to regenerate. So they think like that. They're thinking, I am now resting this body for your service. और भक्त वास्तव में जब सोने भी जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वास्तव में इस शरीर को अगले दिन की सेवाओं के लिए दोबारा से पुनर् जो है रिफ्रेश करने के लिए मैं सोने जा रहा हूँ. तो वास्तव में ये सोना भी भगवान की सेवा में ही गिना जाएगा. हरे कृष्ण प्रभु जी. एक आंसर मेरा और है, बस इसके बाद मैं आंसर करूंगी क्योंकि मेरी कॉपी उत्तर तो है ही, आंसर सही भरी हुई है. मेरा क्वेश्चन ये है कि हर इंसान का आजकल डाइट चार्ट बना हुआ है, इतना खाना, इतना हंसना, इतना बोलना है, डॉक्टर भी बताते हैं ये करना वो करना है. अब मेरे को ये बता दीजिए प्रभु जी कि इंसान को रोना कितना चाहिए 24 घंटे में, कितना रोए इंसान 24 घंटे में. Absurd question. She is asking that just like dietary, they teach us you should eat this much. Sleeping doctor, they tell you should have a sleep. Similarly, how much we should cry? What is the parameter? How much should we cry in a day? I don't know, Maharaj. How can I explain? This is very funny question, Maharaj. Krishna says, don't eat too much, don't eat too little, don't sleep too much, don't sleep too little. No. So, if we're crying for our body, then better to minimize. If we're crying for Krishna, better to do more. तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि वास्तव में यही महाराज का उत्तर है कि यदि आप रो रहे हैं तो फिर शरीर के लिए रो रहे हैं तो ऐसा बेकार ही है रोना, इसको रोने को शांत कर देना. अगर कृष्ण के लिए रो रहे हैं तो ऐसा रोना अच्छा है, रोते रहिए. Okay, now this gentleman here has a question. इधर अब इधर प्रश्न होगा. Hare Krishna Prabhu. Sir, question like giving Krishna 100%. It means whatever we do, whether we are in our workplace or in family life or we are worshiping God, we should devote to it. We should actually think about Krishna. We should. I think giving 100% doesn't mean whatever physical possessions you have, whatever money you have to give it to some organization. I think it means that whatever we are doing, whatever responsibilities we have, we remember Krishna and have a devotion towards him by doing it. Am I correct or not? Please correct. Yes, everything.
Krishna says, Yat karoshi. Well, you have to say. Yeah, you can say it in Hindi. सो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जैसा कि महाराज ने बताया कि हमें सब कुछ सर्वस्व भगवान के लिए त्याग देना चाहिए, तो वास्तव में प्रभु जी एक सवाल प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर्वस्व के मतलब ये नहीं है कि हम वास्तव में सब कुछ ही त्याग दें। इसका मतलब ये है कि हम भगवान के बारे में चिंतन करें और साथ ही साथ अपने जो कार्यकलाप या ड्यूटीज हम कर रहे हैं उसको हम करते रहें, लेकिन चिंतन हम भगवान का करें। तो ये प्रश्न है। Krishna says, Yat karoshi yadashnasi yat dohosi dadasi yat yatapasi srikondeya tat karushva marakanam. Everything you do, everything you eat, all sacrifices and all activities should be done as an offering to me. So Krishna doesn't need our money or our time or anything. He just wants us to, whatever we're doing, to do it in consciousness of Him. सो महाराज बता रहे हैं उत्तर में कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण एक श्लोक में बोलते हैं यत करोषि यत अश्नासी, तो उसमें बताते हैं कि जो भी आप कार्य करते हैं, जो तपस्या करते हैं, जो जप करते हैं, वो मेरे लिए करिए। इसका ये अर्थ हुआ कि आप कार्य करते रहिए लेकिन चिंतन केवल मेरा करिए। तो ये उत्तर। But if we have something, we shouldn't just give Krishna our remnants. No. लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि हमारे पास कुछ हो और जानबूझ के हम भगवान कृष्ण को ना दें या उसका कुछ एक टुकड़ा या कुछ बहुत छोटा सा अंश दें क्योंकि भगवान केवल चिंतन मांग रहे हैं, ये भी इसका अर्थ नहीं हो सकता। Otherwise, we treat Krishna like a dog. No, here, if I have something left over, I'll give it to Krishna. नहीं तो हम भगवान को बहुत तुच्छ प्राणी की तरह मानेंगे कि मेरे पास कुछ है लेकिन मैं उसका केवल एक अंश ही उनको दे रहा हूँ, तो ये बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा। The first thing we do when we have something, we give it to Krishna, and then we take a little risk. No, maybe I only want to give 5%. Well, let me give 10%. No. तो इसलिए कई बार थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। हालांकि कभी ऐसा हो सकता है कि हम 5% दे रहे हैं भगवान को, लेकिन कभी ट्राई करना चाहिए 10% भी दे के देखें कि भगवान को अगर थोड़ा ज़्यादा मिले तो क्या होगा। And everything else that I have, whatever I spend it for, I will use that in Krishna service. My family, I will engage my family in Krishna consciousness. I will use my time and my energy to serve Krishna. तो इस प्रकार फिर बाकी जो भी कुछ बचा है उससे मैं भगवान की सेवा करूंगा, मेरा समय, मेरा परिवार, इन सब के माध्यम से कृष्ण की सेवा करूंगा। Hare Krishna Guru. As you mentioned, in Kalika Maya is so powerful, there is always temptation. In such condition, pathetic condition, how can not let the noise of this world distract us from the voice of Krishna? How can we? As you mentioned in this class, in Kalika Maya is so powerful, there is always temptation. In such a pathetic condition, how one cannot let the noise of this world distract us from the voice of Krishna? तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि माया जो है, जैसे महाराज ने बताया कि बहुत ही प्रभावशाली है और हमेशा हमको जो है पथभ्रष्ट कर देती है, तो कैसे भगवान कृष्ण के शुद्ध वचनों से अपने आप को पथ भ्रष्ट होने से बचाएं? We hear from Bhagavad Gita and chant the holy name of Krishna so that we go from a pathetic position to a perfect position. तो ये भागवत गीता के माध्यम से और जप करने के माध्यम से हम अपने आप को निम्न स्थिति से उच्चतम स्थिति को प्रगसर करते हैं। And that's what all the knowledge of Bhagavad Gita is, to take us out of material consciousness and put us in spiritual consciousness. Then we will act properly. तो वास्तव में भगवद गीता के जो निर्देश हैं वो हमको भौतिक चेतना से उभार कर आध्यात्मिक चेतना की ओर अग्रसर करते हैं। And if we have difficulty doing that, then we associate with the devotees, we attend kirtan, and we purify our heart so that we are not in a miserable condition. तो यदि हम फिर भी भगवद गीता के संदेश को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर हमें चाहिए कि हम भक्तों का संग करें, कीर्तन में भाग लें और जल्दी से अपने इस अशुद्ध जो हमारे अंदर जो गंदगी है उसको साफ करें। Krishna spoke Bhagavad Gita to Arjuna in the worst possible condition.
सो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता बहुत ही असमंजस वाली स्थिति में सुनाई थी। He has to kill his relatives and his teacher. तो वो स्थिति इतनी असमंजसदायक थी कि अर्जुन को अपने ही अ, स्वजनों को मारने का वहाँ पर चुनौती थी। Generally speaking, our challenge in life is not quite that intense. तो जनरली हमारी चुनौतियाँ इतनी गंभीर नहीं होती जितनी अर्जुन की थी उस समय। And therefore, if the knowledge of Gita can take us out of the most difficult condition, certainly it can help in my not so difficult condition. तो यदि ये भगवत गीता अर्जुन के इतने दुष्पूर्वक स्थिति में कामदायक हो सकती है, तो फिर हमारी स्थिति तो इतनी बुरी नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए जरूर असरदायक बनेगी। Srila Prabhupada said, if you have intelligence, you follow Bhagavad Gita. तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि यदि आपके अंदर बुद्धि है तो फिर आपको भगवत गीता को पालन करना चाहिए। And if you don't have so much intelligence, chant the holy name and take prasadam. और यदि इतनी अगर बुद्धि नहीं है तो फिर आप हरे कृष्ण मंत्र जपिए और प्रसाद पाइए। हरे कृष्णा महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम नहीं चाहते कि कुछ देने के बदले हमें कुछ मिले, पर दिमाग में थॉट तो आता ही कि हमें बदले में कुछ मिलना चाहिए, तो इसे कैसे रोकें? महाराज, she is saying that we don't want to expect any result when we want to give something to Krishna, but it automatically comes. That is our nature, that we have some expectation. How to remove that expectation? The expectation may be there in the beginning, and the process may be mechanical, but the more we chant sincerely and the more we serve sincerely, then it will be more easier for us simply to offer to Krishna without any expectation. तो जो फल प्राप्त करने की हमारी जो इच्छा है वो बहुत प्रबल हो सकती है शुरुआत में, लेकिन जब सावधानी से करके और सेवा करके हम जो है इस प्रवृत्ति से अपने आप को उभार सकते हैं और फिर हमारा जो तब सेवा होगा वो बड़ा स्वतः होगा। In chapter 7, Krishna says that 4 kinds of people approach me. तो 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। Those who are distressed, those who need something, those who are trying to curious about life, and those who are looking for the absolute truth. तो वो 4 प्रकार के लोग हैं। कई लोग जो बड़े दुख में हैं, कष्ट में हैं, और दूसरे लोग जो मेरे से कुछ चाहते हैं, और तीसरे लोग जो ज्ञानी हैं, और चौथे हैं जो कुछ जस्ट जानना चाहते हैं, inquisitive. So in the beginning, all of us will approach Krishna from one of those positions. तो शुरुआती अवस्था में हर बार जो है व्यक्ति इन 4 तरीके से ही भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। But when we have the good fortune to associate with devotees who are free from any expectation, then by their association, our heart becomes purified. लेकिन फिर क्रमशः जब हम ऐसे व्यक्ति का संग करते हैं जिसके अंदर कुछ फल की कामना नहीं है, तो उनके संग के प्रभाव से जो है हमारे अंदर भी ये फल आकांक्षा जो है समाप्त हो जाती है और हम शुद्ध बन जाते हैं। That's why we have these temples. इसीलिए हमारे इतने सारे ये मंदिर हैं। The temple is not because Krishna needs to be worshipped and he needs some people to worship him. सो मंदिर केवल इस कार्य के लिए नहीं है कि भगवान कृष्ण को कुछ सेवा की आवश्यकता है और इसीलिए मंदिर बनाया गया जहाँ पे कुछ लोगों को रखा गया जो भगवान की सेवा करते हैं। Krishna says to Arjuna, I'm speaking this hita kamyaya for your benefit. तो भगवान अर्जुन को भगवद गीता में बोलते हैं कि हित कामया, यानी मैं ये आपको संदेश दे रहा हूँ आपके हित के लिए, मेरे हित के लिए नहीं। I'm not getting any benefit here. तो इससे मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला। I'm not looking for some new servants. मुझे कोई नए सेवक मिल जाएंगे इस उद्देश्य से मैं आपको संदेश नहीं दे रहा हूँ। It's like you may see some business that says help wanted. We need some more employees. तो जैसे कई बार बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट में आता है कि हेल्प वांटेड, कि हमारे बिजनेस के लिए कुछ नए एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता है, तो प्लीज़ ये वो मतलब आप हमारे साथ जुड़िए। But Krishna has unlimited goddesses of fortune serving him. लेकिन भगवान के पास ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है,
उनके पास असंख्य लक्ष्मियां हैं जो उनकी सेवा कर रही हैं। And he's only giving us these opportunities to serve for our benefit. तो वास्तव में ये जो हमें जो ज्ञान दे रहे हैं या फिर सेवा करने का मौका दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे ही हित के लिए है। So this temple is here, the deity is here, and the devotees are here for our benefit. तो ये मंदिर है, भक्त हैं और इस प्रकार से व्यवस्था है हमारे हित के लिए। So if we take advantage of that, then we will give up all the interferences that keep us from serving Krishna purely. तो यदि आप इसका पूरा फायदा उठाएंगे तो फिर हमारे अंदर जितने भी कलेश हैं या जो भी हमारे अंदर समस्याएं हैं या जो फल प्राप्त करने की इच्छा है वो सब समाप्त हो जाएगी और हम शुद्ध हो जाएंगे। Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna Maharaj. First of all, I would like to thank you for your words and how you have explained in today's class. And my question is that in the previous chapter, Arjun is his heart is full of mercy. He wants to forgive his cousins and what they have done is. It doesn't matter for him. He just wanted to forgive them. Okay. So how a person who is whose heart is full of mercy and he wants to forgive someone who has done so many what you can say bad things. Okay. So is his heart is in weak? Or what the Krishna said, should the Hridaya word to Arjun. So is that is the situation is like that? Is it right that his heart was weak? Because but at that time he's he wants to convince Krishna that that Krishna, I am doing the right thing, that I want to forgive the bad people, but he's trying to convince Krishna, and at that time is is it good or bad? That's what I want. प्रश्न ये है कि अर्जुन यहाँ पर जैसे उनको शूद्रम करके संबोधित किया गया है कि आपकी जो ये इच्छा है अपने स्वजनों को माफ कर देने की जो आपकी इच्छा है ये वास्तव में बहुत ही तुच्छ इच्छा है। सो भगवान इसको बड़ा ही बुरा स्वभाव बता रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में देखें तो अर्जुन का स्वभाव प्रशंसनीय भी हो सकता था, क्योंकि अर्जुन इतना सहन करने के बाद भी अपने उन रिश्तेदारों को माफ कर देना चाहते हैं। तो एक दृष्टिकोण से तो अर्जुन का स्वभाव बड़ा ही प्रशंसनीय होना चाहिए, लेकिन भगवान की दृष्टि में ये बड़ा निंदनीय दिखाई पड़ रहा है। तो वास्तव में क्या सही है और क्या गलत है? So nowadays people would think, what's wrong with Krishna? Arjuna wants peace. Why does Krishna want war? What's wrong with him? तो इस प्रकार कई बार लोग ये बताते हैं कि अर्जुन यहाँ पर जो है शांति का समाचार या शांति का प्रस्तावना रख रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण तो लड़ने का ही प्रस्ताव दे रहे हैं। तो ये तो बड़ी ही बुरी बात है, भगवान कृष्ण निंदनीय है। But Krishna wants Arjuna to fight because he knows the result of that fight. लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ पे जो लड़ने का जो संदेश दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इस लड़ाई का क्या नतीजा होगा। Because the duty of a Kshatriya is not to forgive, it is to punish. और क्योंकि जो क्षत्रिय का जो गुण होता है वो क्षमा करने का नहीं, वो दंड करने का होता है। Just like if somebody is robbing you with a gun and a policeman comes and he says, "Oh, just be tolerant, be forgive him." You wouldn't feel very good about that. तो यदि जैसे आपको अगर कोई चोर आके आपसे छीन रहा है, छीना झपटी कर रहा है और पुलिस आकर के बोले कि नहीं नहीं इसको करने दीजिए और आप सहन करते रहिए, तो आप कैसा महसूस करेंगे? वास्तव में पुलिस की तरफ से अच्छा कार्य है या बुरा कार्य है? It's your karma. You should lose that money. No, it's your destiny. और पुलिस आपको ऐसे ही समझाता रहे कि ये तो आपके कर्म का नतीजा है कि आज ये आपसे धन ले रहा है या आपका सामग्री ले रहा है, तो इसीलिए इसको सहन कीजिए। Just give him the money and then I won't have to do so much work and
you will receive your karma. तो इसीलिए अपना इसको कर्म ही उल्टे रूप में सामने आया है, ऐसी समझ के आप इसको अपना धन दे दीजिए और काम समाप्त। So we want Krishna to do what we want, but we don't see why Krishna is doing everything perfectly and how he's doing everything perfectly. वास्तव में हम अपनी दृष्टि से देखें तो कृष्ण अनैतिक लग सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं भगवान कृष्ण वो करें जैसा हम चाहते हैं कृष्ण करें, And लेकिन वास्तविक रूप में हम ये नहीं देख पाते कि भगवान कृष्ण का क्या विचार है अपने कार्यों को करने के लिए। तो भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण हम नहीं समझ पाते। Therefore, we see the Shastra, we pick and choose what I like and what I don't like. तो इसीलिए शास्त्र पढ़ते समय भी हम चूज करते हैं, हम वही पढ़ते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है और वो छोड़ देते हैं जो हमको फायदेमंद नहीं लगती। But Shastra is not like a buffet. You go and you choose what I want to eat. No. लेकिन शास्त्र जो है वो खाने का बफे जैसा नहीं है जिसमें जो आपको पसंद है वो आप लेते हो और जो पसंद नहीं है उसको छोड़ के आगे बढ़ते हो। But Shastra says many things. Sometimes they appear to be contradictory. और शास्त्र में कई सारी ऐसी बातें पढ़ते पढ़ते आती हैं जो कि ऐसा लगता है कि बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी, द्वंद्व, विरोधाभास प्रतीत हो सकती है। And therefore, we associate with Guru and Sadhu, and they help us understand what part of the Shastra is good for us at this point in time. तो इसीलिए हम गुरु और साधु का हमें संग करना चाहिए जो कि बताएं कि The Guru and the Sadhu will tell us what is good for us, what part of Shastra is good for us at this time. तो वो गुरु और साधु हमें बताएंगे कि कौन सा शास्त्र का हिस्सा हमारे लिए वास्तविक रूप में अभी करना चाहिए। तो वो गुरु और साधु के माध्यम से हमें पता चलता है। Just like you don't go to the pharmacy if you're sick. Give me some, that blue bottle looks very nice. Give me some of those. So the red bottle over there. No, we go to the doctor. तो जिस प्रकार अगर हम एक दवाई की दुकान में जाते हैं तो हम ऐसा नहीं बोलते कि वो जो लाल बोतल है वो मुझे अच्छी लग रही है, वो आप, और वो जो नीली है वो भी। तो इस प्रकार से हम नहीं बोलते, हमें वास्तव में कौन सी बोतल और कौन सा दवाई चाहिए वो डॉक्टर से पता चलता है, तो इसलिए पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। So this is what Krishna is teaching us, that he becomes the guru of Arjuna and he gives him what he needs, not what he wants. And we go to Sri Guru and the Vaishnavas to get what we need, not what we want. तो उसी प्रकार जो है हमें यहाँ पर जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन जो है कृष्ण के पास जा रहे हैं और कृष्ण वही समझा रहे हैं जो वास्तविक रूप में अर्जुन के लिए फायदेमंद है। तो उसी प्रकार हमें भी जो है एक गुरु और साधु के मार्गदर्शन में जीना चाहिए ताकि वो हमें बताएं कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा रहेगा। We also get what we want because ultimately we all want Krishna and that's what we get. No? और इस प्रकार से वास्तव में हमें जो हमारी वांछनीय चीजें हैं वो भी प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वांछनीय तो भगवान कृष्ण है जो कि भगवत गीता और साधु और गुरु के मार्गदर्शन से प्राप्त हो सकते हैं। Hare Krishna. So we can stop here for today. Thank you all very much. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आप लोगों को उम्मीद है बहुत अच्छा लगा उनका प्रवचन आज। जोड़ा हरे कृष्णा के द्वारा धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत सौभाग्यशाली है कि महाराज हमारे बीच में आकर इतना सुंदर आशीर्वाद दिए और हम चाहेंगे कि फ्यूचर में महाराज आते रहें और ऐसा हमारा ज्ञान बढ़े। तो आप सब लोग की प्रसादम है, जैसे हमेशा लाइन बनाते हैं वैसे लाइन बनाइएगा और इस तरह से लेफ्ट साइड से और